शारदे मां सरस्वती शारदे सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते हो सूर्य ब्रह्म शिव विष्णु गजानन जिन चरणों को सेवते हम शिशु हैं ज्ञानी माता इन चरणों का प्यार दे वीणा पाणी तार दे तार दे तार दे मां सरस्वती शारदे मां सरस्वती शारदे मां सरस्वती शारदे। Good afternoon, everyone. Senior functionaries of Global Technical Campus, head of the department, strategy members, staff members, and my dear alumni. It gives me great pleasure to address you on the occasion of our alumni reunion. A day like this is very important as it gives us opportunity to meet many of our graduates after a long time. The alumni are able to meet each other with their former professors and other staff members. It also enables the alumni to familiarize themselves with the development in their former campus. Allow me to tender my gratitude to each and every one of you for finding time to be with us today. It takes a lot of sacrifice to set aside time out of your busy schedule and come over to such a function. I do hope that experience of this day will be worth the sacrifice you have made. A decade ago, ours was small developing institution. Today, our students, scholars, our alumni cover the globe in their search for knowledge and meaning, and their contribution to make difference everywhere. As alumni who truly love faithfully support this great institution, I know you share my pride in what we are doing and where we plan to go. In recent years, Global Technical Campus has steadily been building its capacity to create a truly great institution. In my views, greatness requires many things like wonderful students, supportive alumni, very successful faculty, supportive campus learning environment, and substantial financial resources. A living institution like Global Technical Campus makes an impact on everything it touches, on the minds, dreams, character, and all over the world as we transfer knowledge, innovation beyond our campus when we impact globally. We believe in inspiring our students and sometimes they repay us in full measures. As I come to close, I would like to restate the role of you play in the wider society. Most of you hold key position of influence. I would appreciate to see you the influence to direct the development of our society positively. You should always endeavor to uphold good morals and act as inspiration to the society. I want to thank all of you for amazing support you have always extended for the institution. I would like to conclude my speech with following lines. May the excitement of today enthuse you. May its enchantment surround you. May the fellowship that we share create magical moments, and may the magical moment be memorable and many. Thank you, enjoy the event, and have a wonderful evening ahead. Thank you very much. A very good afternoon to all the dignitaries and all the alumni. अपने व्यस्ततम समय से व्यस्ततम शेड्यूल से आपने समय निकाला और इस एल्यूमिनी मीट की आपने शोभा बढ़ाई, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं 2009 बैच एल्यूमिनी हूँ, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। जब भी मैं इस कॉलेज में आता हूँ तो मुझे वही बिल्डिंगें दिखाई देती है, लेकिन जो भी चेहरे दिखाई देते हैं वो सब के सब नए चेहरे दिखाई देते हैं। जो चेहरे हमारे जहन में बसे हैं जीआईटी के नाम से, जब हम यहाँ आते हैं तो वो चीज़ें हमें नहीं मिलती।
तो हमारा हर समय यह प्रयास रहता है कि वह चेहरे बार बार इस कॉलेज से कनेक्टेड रहें और बार बार यहाँ आते रहें, जो उनके कल्चर थे, उनकी जो एक पर्टिकुलर परंपरा थी, उनका निर्वहन नई पीढ़ी जो है उसको निभाती रहे, इसका हर संभव हम प्रयास करते हैं। साथ ही साथ कॉलेज में जो भी इवेंट्स हैं, जो भी न्यूज है, उसको हम हर एल्यूमनी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं संपूर्ण। इसके अलावा जो भी सक्सेस स्टोरीज है उनको पब्लिश करने के लिए हमने एक पर्टिकुलर ब्लॉग्स भी रखा है, ताकि आपकी जिंदगी के जो अनुभव हैं, जो भी प्रैक्टिकल समस्याएं हुई, जिस कारण से आप इस सक्सेस पे हैं, उसके यदि एक पार्ट को भी यदि नई पीढ़ी आपकी समझ ले और उनके लिए यदि वो यूजफुल हो, तो हमारा जो पर्पज है पर्टिकुलर सोल्व हो जाता है। आप लोगों के सपोर्ट के लिए आप कभी भी आप कॉलेज में आए, आपको कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हो, आपके लिए पर्टिकुलर व्यवस्था हो, उसके लिए हमने पर्टिकुलर हर डिपार्टमेंट में एक एल्यूमनी कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर अजय कुमार जी विश्वकर्मा एंड कंप्यूटर साइंस एंड आईटी डिपार्टमेंट में श्री प्रवीण शर्मा, श्री नितिन गोटवाल एवं श्री नितिन जैन, इलेक्ट्रिकल में श्री पारस जी अरोड़ा एवं देव कुमार जी, एंड मैकेनिकल में श्री प्रशांत जी, जो आपसे समय समय पर संपर्क करते रहेंगे। कोई भी इवेंट है या आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेरीज है कॉलेज से रिलेटेड, या आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, आप कोई भी गेस्ट लेक्चर लेना चाहते हैं, या और भी कोई आपकी समस्या है उसको सोल्व करने के लिए ये टीम हमेशा साल भर आपके सपोर्ट करेगी। इसके अलावा जो फैकल्टीज है वो तो स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज सब्जेक्ट से रिलेटेड दे सकते हैं, लेकिन जो एल्यूमनी है वही अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस, जो प्रैक्टिकली पढ़ने में क्या समस्याएं आ रही है, पर्टिकुलर जॉब अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्या समस्याएं आती है, कोई भी यदि एंटरप्रेन्योर है, कोई भी स्टार्टअप करना है, उसमें उनको किस तरीके से गाइडेंस मिल सकती है। तो जो भी प्रैक्टिकल अप्रोच है वो आप ही नई पीढ़ी को दे सकते हैं। तो हम आपको समय समय पर हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ आते रहें, अपनी नई पीढ़ी को गाइडेंस देते रहें, ताकि जो आपकी एक पर्टिकुलर परंपरा है, जो भी आपका कल्चर है, वो नई पीढ़ी के अंदर सर्कुलेट होता रहे, वो भी आपको जाने और आप भी उनसे कंटिन्यू इंटरेक्शन करते रहें। जो भी इवेंट्स होते हैं कॉलेज में उसमें हम सब एल्यूमनी को आमंत्रित करते हैं। इसके अलावा जो भी मेन कोऑर्डिनेटर्स हैं उस इवेंट्स के जो पुराने कोऑर्डिनेटर हैं उसको भी हमने इस बार आमंत्रित किया है, और ये शुरुआत हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ताकि उनका जो कल्चर है, उनकी परंपराएं, वो यदि 10 साल बाद भी कॉलेज में आते हैं तो वो मेंटेन रहे, उनको ये एहसास हो कि खुशबू तो वही है, बस चेहरे यहाँ के चेंज हो गए हैं, लेकिन कल्चर है वो का वही है। तो मेरी गुजारिश है कि ये जीटीसी परिवार है और आप अपनी नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन करते रहें, समय समय पर यहाँ पे आते रहें और कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाते रहें। इस साल ग्लोबल टेक्निकल कैंपस सक्सेसफुल 15 इयर्स कंप्लीट कर रहा है, तो मेरी आपसे गुजारिश है, रिश्तों की डोर ना टूटे, आपका साथ न छूटे, रिश्तों की डोर ना टूटे, आपका साथ न छूटे, सालों साल बना रहे आपका हम पर विश्वास, बनता रहे बढ़ता रहे हमारा यह एहसास, फलता रहे भावनाओं का रिश्ता आपके हमारे बीच। यह सिर्फ कॉलेज ही नहीं, ये आपका परिवार है। ग्लोबल टेक्निकल कैंपस, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्लोबल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू। जाना जाता था, जूनियर मुझे राजबॉस के नाम से जानते थे। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, बट मैंने इस स्पेशली ये बीच में थोड़ा सा प्रोग्राम को इंटरप्ट करवाया है। रीजन भी कि ये हमारा एलुमनाई का मीटिंग है। इस एलुमनाई मीट में जो हम कल्चरल एक्टिविटीज देख रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे जूनियर्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बट इस इवेंट का मोटो जो है वो हमारे कल्चरल इवेंट्स नहीं है,
इस इवेंट का मोटो हमारा एसोसिएशन को स्ट्रांग बनाना है। कल्चरल इवेंट्स हम हमारे फैमिली फंक्शंस में देखते हैं, कॉलेज में दूसरे इवेंट्स में देखते हैं, और हमारे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में भी हम देखते हैं। सो अभी मैं चाहूँगा कि हम हमारे जो एलुमनाइज हैं, बिकॉज मैं 2008 से हूँ, मेरे से पहले 2006 बैच फर्स्ट बैच था, उससे लेके 2016, सो ऑलमोस्ट 11 बैच बाहर आ चुके हैं, और आप सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी बैच से एसोसिएटेड है। सो मैं चाहूँगा कि हम लोग आपस में कुछ इंटरेक्शन करें, उससे उस इंटरेक्शन से हम एक दूसरे को जान पाएंगे। हमारे बैच की जो मस्तियाँ 2006 बैच ने की होगी वो शायद 2016 ने नहीं की होगी, जो 2016 ने की होगी वो 2006 ने नहीं की होगी, पर कहीं ना कहीं दोनों का एसोसिएशन एक दूसरे से है, इस कॉलेज से है। सो मैं चाहूँगा कि हम एक बैच से मतलब लोग आए और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। उनके 4 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 साल थे, और उन 4 साल को अपन किस तरीके से 11 साल से गुणा कर सकते हैं। सो विल गेट 44 years of experience. So first मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2006 बैच से, 2006 बैच सचिन बॉस, सौरभ बॉस, ममता बॉस, कई जनों के नाम याद हैं, जूनियर्स के हो सकता है नाम याद नहीं हो, तो अगर मैं बैच का नाम बोलूं तो जो भी आगे आना चाहे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, वो एसोसिएशन से क्या चाहते हैं, वो इस एसोसिएशन को और स्ट्रांग कैसे बनाना चाहते हैं, उनके क्या व्यूज हैं, वो सामने लाएं, ताकि जो नई एसोसिएशन बने वो उन सब व्यूज के ऊपर काम करे और हमारी स्ट्रेंथ को और भी मजबूत बनाए। हेलो, पहले तो मेरे को ये स्टेज देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कुछ था ही नहीं। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। हम लोग 2007 बैच पास आउट इलेक्ट्रिकल से। माय नेम इज कुणाल शर्मा। थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ कर दूं। 2007 के बाद हम लोग पास आउट हुए, उसके बाद मैंने एबीपी ज्वाइन किया। एबीपी के बाद मैंने अडानी पावर में रहा, एंड माय लास्ट कंपनी इज जिंदल पावर। और अभी जिंदल को छोड़ के लास्ट 1 ईयर से मैंने खुद की अपनी कंपनी खोली है। इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स को सोलर पावर में डील करते हैं हम लोग। और एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूं मैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बिल्कुल एकदम रजा पाने की तरह में कभी नहीं था, पर एक एवरेज स्टूडेंट था। यहाँ के टीचर्स का काफी सपोर्ट था, एक एवरेज स्टूडेंट को भी अच्छा एक अपना कैरियर बनाया आप लोगों ने यहाँ से। और आप सब लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपना कैरियर काफी हाई पर लेके जाएंगे। और हम लोग तो जीआईटी के पास होते हैं, आप लोगों के तो 2 कॉलेज हैं यहाँ पर इस कैंपस में, तो जीटीसी ना राज, कितने 2 कॉलेज हैं, जीटीसी और जीआईटी, जीसीटी ना, जीसीटी ना। हाँ, तो मैं होप करता हूँ कि जीसीटी और जीआईटी के दोनों कैंपस के स्टूडेंट्स काफी अपने कैरियर को बनाए। एक अरे 2 कैंपस है ना, 2 कैंपस में 2 कॉलेज है ना, कैंपस में 2 कॉलेज है ना। तो एक्चुअली वो आदत है उनकी उंगली करने की, सचिन बॉस की। तो अभी ऐसा ही हम लोग का चल रहा है, बढ़िया है। आप लोग भी अपना कैरियर बनाए और अब आगे कंटिन्यू कौन करेगा? लो सर्वप्रथम मैं सभी अभिनेताओं का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। मैं मेरा परिचय दे दूं, मैं 2008 बैच का इलेक्ट्रिकल का पास आउट हूँ, और हमारा बहुत छोटा सा बैच था, 26-27 बच्चों का। तो बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस आपको देता हूँ उसमें, तो एक्सपीरियंस आपको दूंगा, पहले वापस बता दूं कि सबसे पहले तो मैनेजमेंट का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, डायरेक्टर साहब का, कर्नल साहब का, जो स्टूडेंट्स लगे पड़े हैं या पीछे छुपे बैठे हैं, जिनको कोई देख नहीं पा रहा है, ये कैमरा में मेरे सारे साथियों को तहे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं कि वो इसी तरीके से कार्यक्रम आगे करते रहे और वैल्यू को बुलाते रहे और खेलते रहे। ठीक है, अब सबने लाइफ में बहुत कुछ किया। आज मेरे को 9 साल हो गए, आज मेरे बैच है, वो इसी का काम है, इलेक्ट्रिकल का था। तो कॉलेज टाइम में तो हमारी दोस्ती थी नहीं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स था और नोटोरियस थे। कॉलेज के बाद ये नरम से दोस्त बने। तो मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि अब तक हमने कॉलेज से लिया था, 2004 में मुझसे 2008 में हमने लिए ही है। अभी हमने कॉलेज में फीस के अलावा कुछ नहीं लिया है या नहीं लिया। तो इट्स नाउ आवर टर्न कि हम कुछ ऐसा करें कि आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं अभी 17 बैच के कितने बच्चे हैं यहाँ पे? अभी तो पढ़ रहे होंगे ना बस।
हाँ 60 वाले तो 17 समय ना तो कुछ ऐसी अपन लोग मोडालिटी कुछ ऐसा मॉडल डेवलप करें कि जो एग्जिस्टिंग आपके सीनियर्स हैं उनका जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, मेरे पास तो ज्यादा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है, बताऊंगा मैं क्या करता हूँ अभी, तो वो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस अपन लोग यहाँ पे लाके इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करें ताकि इनको इंडस्ट्री में जाके दिक्कत ना हो। ये तो बहुत थ्योरेटिकल बात हो गई जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में बोला जाता है, ठीक है बॉस। मैं ये चाहता हूँ कि हम वाकई में कहाँ दिक्कत आ रही है, जो गैप है बेसिकली ये गैप एनालिसिस करते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं सीएस वाले, उस गैप को एनालिसिस करें कि वाकई में हमारा बच्चा इंडस्ट्री के लिए कहाँ परफेक्ट नहीं है अभी, और उन पॉइंट्स में हम लोग वर्कआउट करें, ठीक है। तो मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, उसके 150 आदमी से मिलता हूँ, तो एक देखो नॉलेज सबके पास है, डिग्री सबके पास है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम मैकेनिकल में मशीनरी सबको पता है, केवल एक चीज जो मिस कर रहे हैं वो शायद थोड़ा सा एटीट्यूड की कमी है कि लोगों को लगता है कि और बहुत सही है, तो थोड़ा सा एक लगता है कि वेलकम तो मेरा ये पॉइंट है कि थोड़ा सा एटीट्यूड की कमी है कि इंडस्ट्री में क्या चाहिए, बिकॉज उनको बच्चे नहीं चाहिए बॉस, उनको बच्चे नहीं चाहिए, उनको चाहिए वो बंदे जो सेठ को कमा के दे। तो हमको हमारे स्टूडेंट्स को वो सिखाना है जो वाकई में इंडस्ट्री मांगे, ठीक है। अब मैं आपको क्या सिखा सकता हूँ, अब मैं आपको मेरा बात सिखाता हूँ। मैंने 2008 में इंजीनियरिंग करी, उसके बाद मैं जीनस में चला गया, वहां एक मैंने बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद वहां से मैं टेक महिंद्रा में चला गया, मैंने वहां का बॉन्ड तोड़ दिया, मतलब मैं सिंसियर नहीं मिल रहा। उसके बाद मैं बिजली बोर्ड की सेवाएं अभी दे रहा हूँ, और इंजीनियरिंग एसोसिएशन में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ अभी। राजस्थान के जितने भी इंजीनियर्स होते हैं बिजली विभाग के, उन सबका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। दूसरी उपलब्धि मेरी शायद जीवन की सबसे बड़ी ये है कि बिजली बोर्ड का एक ट्रस्ट होता है जिसका कि कॉर्पस 70,000 करोड़ का है, साल में 13,000 करोड़ इन्वेस्ट होता है, वो मेरे साइन के बिना नहीं हो सकते, मैं उसका ट्रस्ट नहीं लेता होता है। और 5 बड़ी यूनियन, भारतीय मजदूर संघ, इंटर, सिटू, रफ्ताका, बड़ी यूनियन है देश की, उन सबको मैंने धूल चटाई की। मैं पावर हाउसिंग एसोसिएशन में अभी वाइस प्रेसिडेंट के पद पे हूँ, और इसीलिए मैंने कहा कि अभियंता, आप सब लोग पूछोगे कि इंजीनियर का हिंदी का मतलब भी क्या होता है। अभियंता कहते हैं, अभियंता की इंजीनियर होती है, तो इसीलिए कहता हूँ अपन लोगों को जो गैप है ना बॉस, वो गैप को पूरा करना है। उसके लिए मैं चाहूंगा कि एलुमनाइज आपके साथ है, आप एलुमनाइज के साथ हो। ये फेसबुक पे पोस्ट करने से कभी भी जुड़ाव किसी का नहीं होता है, मैन टू मैन मार्केटिंग होनी चाहिए, सब कुछ मैन टू मैन टच होना चाहिए, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। जय हिंद, जय भारत। Good afternoon all of you. मैं शैलेश मजुरिया, 2009 बैच, मैकेनिकल ब्रांच, और अभी राइट नाउ आई एम वर्किंग एज ए मैनेजर इन एनबीसी बेयरिंग्स मैन्युफैक्चरिंग। कॉलेज में जब आज एंटर किया, मैं प्रीतम के साथ आया हूँ, कॉलेज में जब आज एंटर किया तो कंप्लीट कॉलेज, मतलब फैकल्टीज से लेकर पूरा कॉलेज बिल्डिंग सब कुछ चेंज मिला। फैकल्टीज में मतलब पहले प्रिंसिपल सर हुआ करते थे, एसपी गुप्ता सर, पोखरना सर, सब कोई भी नहीं, परफेक्ट। हाँ, मैकेनिकल के भी जो फैकल्टीज है ब्रांच में, मैकेनिकल ब्रांच में, वो भी पुराने जो फैकल्टीज है उसमें एक या दो, मतलब जांगेट सर, साकेत सर, बस। तो टोटल ओवरऑल चेंज तो है ही, और अच्छा भी है, चेंज होना जरूरी है टाइम के साथ। और मैं ये करूँगा कि ऐसे एलुमनाई मीट बार होती रहे यहाँ पर, जैसे हम लोगों का इंटरेक्शन बढ़े यहाँ पे स्टूडेंट से, और यहाँ पे भी यूजफुल है। थैंक यू। मैं 2009 बैच एलुमनी, और कॉलेज की यादें इतनी अच्छी थी कि मैं उस कॉलेज से बाहर आ ही नहीं पाया। मैं वहाँ तक उसी कॉलेज में जुड़ा हुआ है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरा एक सेल्फ जो है रिस्पेक्ट और सेल्फ जो मतलब मेरा प्यार था वो कॉलेज के लिए आज भी उतना ही है जितना उस समय था। इसलिए मेरे को कभी लगता ही नहीं है कि मैं यहाँ वर्क कर रहा हूँ, तो मेरे को ये लगता है कि हमारी सारी बिल्डिंग जानी पहचानी है। 4 साल हम हॉस्टल में रहे तो हर समय कॉलेज की बिल्डिंग में घूमते रहते थे, तो आज भी ये लगता है कि हम स्टूडेंट ही, आज तो नहीं होता कि हम कोई फैकल्टी हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एज ए जूनियर की तरह तो हम ट्रीट करते ही हैं, स्टूडेंट की तरह ट्रीट सेकंड प्रायोरिटी पे करते हैं। पहले हम यहाँ पे एल्यूमनी हैं, देन हम फैकल्टी हैं।
मीडिया 2010 कंप्यूटर साइंस ब्रांच। मतलब जब यहाँ आए और जो फीलिंग होती है वो बहुत ही अच्छी, जो पुरानी यादें हैं, पुराने सीनियर से मिलना, कुछ टीचर्स जो पुराने हैं उनसे मिलना, वो अपने आप में एक अलग से ही लगता है। रिगार्डिंग एल्यूमनाई जो एसोसिएशन बनाई है और जो ऐसी मीटिंग्स रखी है, लास्ट टाइम भी मैं आया था 2014 के अंदर, जब छोटा सा प्रोग्राम रखा था और हम लोग कलाम सर आए थे, उस टाइम हमें मिलने का मौका मिला था उनसे। वो अपने आप में एक अलग ही एक इंस्पायर, हमें एक अलग सा मोटिवेशन मिला था। और इस बार कुछ नया हो ये एक उम्मीद है, और इसको आगे कैसे प्रोसीड करना है इसके लिए भी एक नई गाइडलाइन बननी चाहिए और कुछ अच्छा हो जिससे हम लोग हमारे जूनियर्स को भी सपोर्ट कर सकें। मैंने अपने खुद का स्टार्टअप चालू कर रखा है, आई बिलोंग फ्रॉम भिलवाड़ा, और वहाँ पे ही मैंने अपना सेटअप कर रखा है। और एज ए IT एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने शुरू की है। इससे पहले मैं 2 IT कंपनीज में काम कर चुका हूँ। एक कंपनी में मैं एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय था, एक कंपनी में मैं एज ए पार्ट टाइम एम्प्लॉय था। बट जो मैंने काम किया है वो अपने आप में मैं उसको अलग मानता हूँ क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो कई बार उस चीज़ को एग्री नहीं करती है। आप लोगों में से कितने लोगों ने रिमोट वर्क के बारे में सुना है? रिमोटली हमने यूएस में सुना है, हमने यूके में सुना है कि रिमोटली काम करते हैं। हम लोग यूके में रहकर भी रिमोटली काम करते हैं, हम लोग यूएस में रहकर भी रिमोटली काम करते हैं। मैंने इंडिया में रहकर रिमोटली काम किया हुआ है और मैं 3 कंट्रीज के एम्प्लॉयज को संभालता था। दैट टाइम व्हेन आई वाज वर्किंग विद दैट कंपनी, एस्टोनिया, यूक्रेन और यूएस, और हमारा हेड ऑफिस था यूके के अंदर, और मैं यहाँ रिमोटली उन लोगों को संभालता था। ये अपने आप में एक अलग सी चीज़ थी मेरी कम्युनिटी के अंदर। एटलीस्ट इवन वो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझ पर एक बार भरोसा नहीं किया कि बेटा ऐसे कैसे हो सकता है कि तू ऑफिस नहीं जाता है, घर में बैठता है या किसी भी जगह एक कोवर्किंग स्पेस में बैठता है और अपना काम करता है। बट अब जो है वो ट्रेंड एकदम चेंज हो चुका है, बिकॉज स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीज़ें काफ़ी बूम में हैं और लोग इसे समझने लग गए हैं। तो अभी ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हो चुका है और लोग समझते हैं ऐसे कि वास्तव में ऐसा कुछ होता है। और जो लोग अभी भी जो 2016 या 15 या 17 जो पास आउट होने वाले हैं, वो बंदे अगर ये सोचे कि नहीं हमें कल ऑफिस में आके काम करना होता है, इट्स नॉट नेसेसरी। यू कैन डू वर्क फ्रॉम एनी प्लेस। यू कैन जस्ट ओपन योर लैपटॉप, जस्ट प्लग योर डेटा कार्ड, और अगर तुम एक क्या बोलते हैं इसको, समुद्र या मतलब सी के बीच में बैठ के मैंने खुद ने भी किया हुआ है। मैं थाईलैंड के बीच में बैठ के अपना काम कर रहा था, वहाँ पे मैंने किया हुआ काम। तो आप कहीं से भी काम कर सकते हो until unless कि आपको अपना काम फोकसली और टाइमली अगर आप सबमिट करते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। एंड फॉर जूनियर्स के लिए सजेशन यही है कि जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स, एक सेट प्रोसेस अपना बनाइए। अभी क्या है कि हम लोग जब नए निकलते हैं तो हम लोगों को काफी रहता है कि नहीं हम इंजीनियर हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, करने में सब कुछ कर सकते हैं। बट जब हम मार्केट में जाके देखते हैं तो सिचुएशन एकदम डिफरेंट मिलती है। सबसे पहले अपना एक गोल सेट कीजिए कि हम किस प्रोफाइल पे, या हम लोग को अगले नेक्स्ट 3 इयर्स का, जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर में हमें क्या प्लान बनाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक छोटा सा गोल सेट कीजिए कि नेक्स्ट 1 और 1.5 ईयर या 2 ईयर का हम एक गोल प्लान सेट करें कि 2 साल के अंदर मुझे ये चीज करनी है या ये इस पोजीशन पे पहुंचना है। तो यू विल स्टार्ट जस्ट फोकसिंग ऑन दैट पार्ट कि हम ये स्टेप को क्लियर करते जाएं। हम डेफिनेटली उस चीज पे पहुंचते जाएंगे एंड अचीव कर सकते हैं उसको बहुत इजी तरीके से। That's all. और मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए, यू कैन कनेक्ट मी ऑन फेसबुक, लिंक्डइन, और पर्सनली मेरे से बात कर सकते हैं। आई कैन हेल्प। मैंने 2-3 स्टार्टअप्स को मैं हेल्प भी कर रहा हूँ, मोटिवेट भी करता हूँ, कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स को मैं मोटिवेट करता हूँ। एंड राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जहाँ पे हम अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी लोग हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटी बनाई है हम लोगों ने जो कि फोकस करते हैं शेयरिंग इज केयरिंग पे। तो हम लोग एक ऐसा एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे अपनी कस्टम्स, अपने कल्चर और अपनी स्किल्स को लोग शेयर कर सकें। अभी मेरे साथ थाईलैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से कुछ बंदे कनेक्टेड हैं और वो अपनी लैंग्वेजेस के बारे में लोगों को सिखा रहे हैं अलग अलग स्टाइल से, कि कैसे हम थाई सीख सकते हैं, कैसे हम हिंदी सीख सकते हैं, कैसे हम फ्रेंच सीख सकते हैं, कैसे हम जर्मन सीख सकते हैं। तो हम इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। किसी भी कोई हेल्प चाहिए, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू। 2010 बैच पास आउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। काफ़ी बॉस कह रहे थे कि भाई स्टार्टिंग में अभी कोई बॉस आए थे, वो कह रहे थे कि जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यहाँ पर आए सबसे पहले तो उनको अवॉइड किया गया, उनको साइड में रखा गया।
लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ जब पुराने बैच के जो आए हैं उनमें से काफी जने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ही है, उनके लिए रियली मैं तालियां बजाता हूँ कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बैच के पास आउट आए हैं। मैं पहले जब GIT से पास आउट हुआ तो थ्रू कैंपस प्लेसमेंट मिला था मुझको अपोलो टायर्स। फिर मैंने मेरे कजिन अंकल को ज्वाइन किया और एक हल्का सा स्टार्टअप किया मशीनरीज का। और अभी एक मैं यूनिट ऑफ एक्वा केयर करके कंपनी है जिसका पूरा कंप्लीट गुजरात रीजन का एजेंट हूँ और चाइना का एजेंट हूँ। यूनिट ऑफ एक्वा केयर एक टेक्निकल वाटर इवेपोरेशन की कंपनी है और ये मशीनरी लाइन में पहली कंपनी है जो इंडिया से चाइना मशीन एक्सपोर्ट करती है। हम फर्स्ट कंपनी है जो चाइना में जाके मशीन्स को सेल करते हैं और अभी हमारे 7 to 8 वहाँ पर मशीन्स लग चुकी है। और दूसरी बात रही एल्यूमिनी की बात। हेलो, आवाज उधर में कोई बात नहीं। रही एल्यूमिनी की बात, थैंक यू बॉस। रही एल्यूमिनी की बात, तो एल्यूमिनी के आधार पर मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ कि करेंटली मैं अपनी स्कूल का भी एल्यूमिनी का सेक्रेटरी हूँ और हम अपनी स्कूल में भी काफ़ी प्रोग्राम्स करते हैं एज एन एल्यूमिनी। जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो सब कहते हैं मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पास आउट हूँ, मैं IIT से पास आउट हूँ। तो कभी कभार एज अ जोक मैं कह देता हूँ यार तू तो इंडियन इंस्टीट्यूट से ही पास आउट है, मैं तो ग्लोबल से पास आउट हूँ जो पूरे ग्लोब में है। तो एल्यूमिनी ऐसी चीज़ है जो सब जगह पूरे ग्लोबल में है, हम लोग एक जगह नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है जो कनाडा में है, मेरा एक फ्रेंड है जो जर्मनी में है। हमको उन सबको एज अ कॉलेज, जैसे मेरा बैच एज अ बैच, मेरा उद्देश्य रहेगा जो मेरे बैच के हैं मैं उन सबको टारगेट करूं, उन सबको अपनी कमिटी से जोड़ूं, अपनी एल्यूमिनी टीम से जोड़ूं। ऐसे जो आज बॉस आए हैं, जो आज जूनियर्स आएंगे, जो आज मेरे सीनियर्स हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी अपन ने केवल एक चेन स्टार्ट की है, इस चेन को अपन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि GIT कॉलेज को अगर अपन कहीं पर भी फॉर्म भरते हैं या कुछ भी भरते हैं तो सबसे पहले अपन अपने कॉलेज का नाम लिखते हैं। तो अगर अपना कॉलेज फेमस होगा तो अपन खुद फेमस हो जाएंगे। अपन को किसी और चीज को फेमस नहीं करना है, अपन को केवल अपने कॉलेज को फेमस करना है। वो फेमस है, लेकिन एज अ एल्यूमिनी अगर अपन और फेमस करेंगे तो अपन अपने आप में फेमस हो जाएंगे। जैसे बॉस ने कहा कि वो 13,000 करोड़ के पेपर पे वो जो चेक पे साइन करते हैं वो बहुत फील प्राउड करते हैं। ऐसा भी मौका आएगा जब हम भी कहेंगे हम इस कॉलेज से पास आउट हुए और हम बहुत फील प्राउड करते हैं, अभी भी करते हैं। तो एक ब्रांड को जोड़ना है, उस चीज को जोड़ना है, वो टाइम लगेगा। अभी जैसे आज ही पता चला कि अपने 15 साल पूरे होने वाले हैं। मैं चाहता हूँ 10 साल के बाद अपने 25 साल पूरे होंगे जब ये एल्यूमिनी के लिए ये पूरा हॉल भरा हुआ हो। बहुत मजा आएगा, जैसे अपन अभी बात कर रहे हैं वैसे अपन सबसे बात करेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे, गेम्स खेलेंगे, पुरानी यादों को शेयर करेंगे। पूरा जब चल्लम चल्ला भरा हुआ होगा ना, चल्लम चल्ला देसी भाषा में, तब और मजा आएगा। और रही इवेंट्स की बात, कॉलेज में तो जिज्ञासा 2010 कोऑर्डिनेटर्स और इवेंट तो कॉलेज में बहुत करवाया है मैंने और विशाल ने। कभी रुद्रिका, कभी रोबोकॉन में गए, वो सब कॉलेज तक रह गए। लेकिन अभी कुछ कॉलेज के लिए करना है वो अब करना है। जो कर चुके हैं वो कर चुके हैं, वो अपन सीखे हैं, लेकिन जो अब करना है वो अब करना है। इसलिए मेरी तपन बॉस से जो भी कमेटी देख रहा है, जो हम स्कूल में करते हैं वो मैं बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, नॉमिनल चार्ज देते हैं एज ए एल्यूमिनी 100 रुपये या ईयरली मेंबरशिप कुछ भी रखने में 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एल्यूमिनी का खर्चा भी एक खर्चा है, इट इज एन एक्सपेंस। अगर कॉलेज बियर करता है देन इट इज गुड फॉर अस, बट इफ कॉलेज इज नॉट एक्सपेंसिव, कॉलेज खर्चा नहीं कर रहा है क्योंकि उनके भी कुछ टारगेट्स होते हैं, कभी एल्यूमिनी के लिए कितना मिलता है आई डोंट नो, लेकिन अगर नहीं कर रहा है देन वी कैन डू लाइक नॉमिनल फीस चार्जेस दे दिया फॉर मेंबरशिप, इट इज अराउंड 100 रुपीज। अगर 100 रुपीज भी अपन करें तो अगर इतने सारे मेंबर्स जुड़ जाएंगे, एक एल्यूमिनी का अकाउंट बना दिया, आपको उसी के अंदर 100 रुपीज RTGS करने हैं। तो अगर अपन 100 रुपीज, जैसे अभी रिलायंस जियो वाला 100 रुपीज मेंबरशिप करने के लिए करोड़ों रुपए कमा रहा है, तो अपन 100 रुपीज से एक एल्यूमिनी के अकाउंट बना देंगे, उससे अपना एल्यूमिनी का ही एक्सपेंस चलाएंगे। कभी कोई इवेंट करवाना है, कभी किसी को बुलाना है, या कभी किसी को टेक्निकल का स्पीच देना है। आज अगर अपन सीनियर जो भी अपना जूनियर्स को आगे अगर अपन कोई टेक्निकल अपने
व्यूज को शेयर करते हैं, इट इज एन एडवांटेज, इट इज नॉट एन डिसएडवांटेज। अपन कभी कॉलेज में क्या कर रहे हैं, अपन ने अभी क्या कर रहे हैं, तो अपने जूनियर्स को मोटिवेट करें। और दूसरा, एलुमनी का मेन रोल टीपीओ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में भी आता है। अगर कोई भी एलुमनी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट जो अपने कॉलेज में है उसके टच में रह के, या ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट एलुमनी के टच में रह के बहुत कुछ कर सकता है। फिर उसको पहले क्या होता था, हमारे टाइम में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट में मुखर्जी सर थे, आई डू रिमेम्बर। तो मुखर्जी सर बहुत ट्रायल लेते थे, कभी रात रात भर कौन कंपनी वाला आ रहा है उसके पीछे रहते थे, फोन करते थे, यार मेरी कंपनी से इतने, मेरे कॉलेज से इतने जने होने चाहिए वो कर। अब मेरे को नहीं लगता है हर एक कंपनी में, जैसा भी बॉस है सिक्योर मीटर्स में थे एज अ मैनेजर, कोई बॉस अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर चुके हैं, कोई बॉस जैसे पूरे राजस्थान हेड में वो आईडी कार्ड का काम करते हैं। तो अब आर एलुमनी जो काफी अच्छे तक पोजीशन पर पहुंच चुकी है, 10 साल बहुत होते हैं, 10 साल में उन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन पे अलग अलग कंपनी में पोस्ट ले चुकी होगी। तो अगर जो भी करंट अपना डिपार्टमेंट है उनसे टच करें कि आपके वहां पर कोई भी प्लेसमेंट के लिए या कोई भी और रिक्रूटमेंट के लिए दे कैन हेल्प, देन इट विल बी गुड फॉर कॉलेज। क्योंकि इनडायरेक्टली वो अपनी कंपनी में अपने कॉलेज के बंदे को लेके आएगा तो उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हर एक कॉलेज में रेफरल के लिए भी उसको पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये भी एक अपना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर अपन एलुमनी के अंदर टीपीओ डिपार्टमेंट उनके टच में रहे, और उसके लिए बहुत एडवांटेज अपन यूजफुलनेस एलुमनी से ले सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, और वंस अगेन थैंक्स टू द टीम जो, और थैंक्स टू द स्टाफ मेंबर्स। अभी मैं अंदर घुसा तब टीचर्स में तो मुझे काफी चेहरे चेंज नजर आए, लेकिन जो यहाँ के जो स्टाफ मेंबर्स थे, यानी कि जो पियोन थे, लाइब्रेरी वाले भी, या फिर कोई और भी हो जो हमारे उस वक्त, वो वाले पियोन्स के चेहरे मुझको सेम लगे। बाकी जो ऊपर की फैकल्टी थी, टीचर्स, आपने भी बहुत नोट किया होगा। तो ये काफी अच्छा लगता है, क्योंकि लाइब्रेरी में जब हम जाते थे फर्रे ही बनाते थे और किसी काम के लिए नहीं जाते थे। एग्जाम का जब फर्रा बनाना है, बुक्स तो कभी संभाल के रखी नहीं, एग्जाम का फर्रा बनाना है तो लाइब्रेरी में जाके फर्रे बनाते थे, और कॉलेज में एग्जाम के वक्त टॉयलेट के बहाने उस फर्रे को खोलते थे, या फिर टीचर के सामने ही फर्रे को खोलते थे और एग्जाम दे के आ जाते थे। वो फर्रे के साथ एग्जाम देना भी एक आर्ट था, बहुत मजा आता था। और जब टीचर पकड़ता था, देख भी लेता था, तो भी उसको लेट गो करता था, वो भी एक बहुत ही मजे वाली चीज थी। और रियली थैंक यू वेरी मच, मैंने कुछ ज्यादा लंबा बोल दिया, थैंक यू। एवरीवन, आई एम संजीव कुमार राजरिया, और बहुत से लोग जानते भी होंगे इस घूमता हुआ दिख जाता हूँ कॉलेज में। आई एम पास आउट फ्रॉम 2007 to 2011 बैच फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। After completing my BTech in August 2011, in 1st September 2011, I was in GCT as an assistant professor, and I completed my MTech in 2015, December 2015. तो जब अपन सर पहले बोल चुके थे कि इस कॉलेज में रहे हैं, तो सेम उसी तरह से अगर मेरी कभी इनसे बात होती है तो मैं भी कहता हूँ इस कॉलेज में कितने टाइम से हो, क्या हो, नई फैकल्टी कभी आती है, तो मेरे मुझे एक ही चीज़ निकलता है, इस कॉलेज में आए हुए मुझे 10 साल हो गए। 10 साल से मैं इस कॉलेज में हूँ, और एक तरह से मेरी फैमिली की तरह ही है। बहुत सारी फैकल्टीज हैं, जिन फैकल्टीज के साथ जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, आज मैं उन सबके साथ में बैठता हूँ, उन सबके साथ में बातें करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और एक टाइम था, पारस हमारे साथ का ही है, ये भी अभी इसको भी देखा होगा, ये भी हमारे डिपार्टमेंट में ही है। निशान हमारे बैच का है, ये अलग काम कर रहा है एमआईटी यूनिवर्सिटी में। एक टाइम था जीसीटी, जब यहाँ बिल्डिंग नंबर 5 में बैठ रहे थे, तो सेम बैच के 2011 के पास आउट 6 स्टूडेंट थे हम, और बहुत से बच्चों को पता भी होगा स्टार्टिंग से। और जैसे बात की थी कि हम टीचर बाद में पहले सीनियर, तो बहुत सी क्लास में जैसे मैं पढ़ाता भी हूँ, जीसीडी वालों को बहुतों को पढ़ाया है, तो उनसे फर्स्ट क्लास का जो इंटरेक्शन होता है वो एज ए सीनियर ही होता है। उनसे जो फर्स्ट बात होती है उनके सामने फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस ही शेयर होता है कि मैंने इस कॉलेज में कैसा टाइम बिताया था, और कॉलेज में कैसा माहौल रहता है, आगे जाके क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, फाइनल ईयर में क्या होता है। अधिकतर अगर मैंने फर्स्ट क्लास किसी को भी याद होगी, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ पुराना, तो उसको याद होगा कि फर्स्ट क्लास कैसी रहती है। तो यही मतलब है कहने के लिए कि आगे जहीं भी जाते हो, हमारे जो भी 4, 5, 6, 7 जने रहते हैं एलुमनाई मीट्स में, जैसे मिलते हैं वैसे मिलते करते रहें तो काफ़ी अच्छा लगता है। और जैसे एलुमनाई मीट्स का जो
पिछले साल भी कुछ फंक्शन हुआ था और तो कुछ नहीं, लेकिन जो जैसे नॉमिनीज वगैरह का अभी कुछ हुआ था, अभी प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनीज वगैरह चूज किए गए थे, काफ़ी जनों के नाम आए थे, लेकिन उनमें से अभी जो फॉर्म जब हम फिल कर रहे थे तो उसमें फॉर्म में दिखा था कि सिंपली 4 जनों के या 5 जनों के नाम लिखे हुए हैं। प्रेसिडेंट्स के लिए कोई 4 हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई 4 है और सेक्रेटरी के लिए कोई 4 हैं, तो वो समझ में नहीं आया कि चूज किस तरीके से किए गए हैं। अगर नॉमिनी 30 के नाम आए हैं तो 30 जनों के नाम होने चाहिए थे इनमें, कि उनमें से कौन किस पे ले जा रहा है, वो डिवीजन किस हिसाब से हुआ वो समझ में नहीं आया। लेकिन फिर भी चलो, गलतियाँ होती रहती है, आती रहती है, एक के बाद एक सीखेंगे और कुछ नहीं। Good evening, friends, my seniors, respected teachers, and all those my juniors also. I'm Nishan Saxena. I'm from 2011 batch in electrical engineering branch. Presently, I'm working in an assistant professor in MIT University, and just after completing my graduation from Global, I've done my MTech from Thapar University, Patiala. There I've learned a lot, and one thing I want to say, that when I graduated from the Global, lot of students, lot of my friends have complained that Global has not provided the placements and all good placements, and it's my personal opinion that it's not about the placement, it's about the person. It's your own responsibility and it's your own capability that brings you up. It's not the college only has the responsibility, it's your decision also, and it's your responsibility on. And I also request the faculty and the college that a lot of students, they are not indulged in the research projects and all, and the research field is going down with a more amount of students and all. So research in the fields of development, in the innovation, creation of something, working for something like a patent, so that you can work hard. And in the Thapar University, I worked a lot in the field of research, and I've developed some hybrid electric vehicles also. And presently, I'm also associated with some of the fields and some of the societies for the working for the research. श्री पारस अरोड़ा, मैं वही श्री पारस अरोड़ा। हम तीनों 2011 इलेक्ट्रिकल के पास आउट हैं, तो इलेक्ट्रिकल ने अपनी जगह तो बनानी चालू कर ही दी है। एग्जाम में ना हम फोन में रिकॉर्डिंग करा करते थे, ये पेपर ऐसे दे रहे हैं, देखो चीटिंग कर रहा है। अब हमने यहाँ कैमरे लगा रखे हैं, वो खुद ही पकड़ लेता है। मैं जब यहाँ से पास आउट हुआ, उसके 1 साल बाद यहाँ आया, अब मैं यहीं पढ़ा रहा और 3 बैच मेरे आने के बाद पास आउट हो चुके हैं। एक चीज अभी तक नहीं बदली यहाँ पे, फेयरवेल हमारे टाइम जैसा था ना, आज भी एकदम वैसा ही है। हर साल उस फेयरवेल को जीता हूँ। जब जीसीटी में आया था, जैसे संजीव ने बोला, हम 6 जने थे, मैं, मणिकांत, संजीव, ईशा, प्रमोद, हितेश लवाना। मतलब हितेश लवाना का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। राजानंदम सर थे यहाँ पे डायरेक्टर जीसीटी के, अगर वो माइक्रो प्रोसेसर इसी के लैब में भी गए हैं ना, तो हितेश लवाना की वो काबिलियत थी कि वो कहते थे कौन हितेश लवाना, ये एक्सप्लेन जो है। अब जब यहाँ इलेक्ट्रिकल में उनकी जीआईटी जीसीटी एक हो चुका है, जीटीसी हो चुका है, तब भी हम काफी सारे लोग बनाए हैं। मैं, संजीव, कमल, देव, रंजीत, गौरव जैन सर आज आए नहीं है, बाकी सबसे आप मिल लेंगे। थैंक यू। मैं 2013 बैच से नवीन अग्रवाल, 2012 बैच से कोई भी नहीं आया। इसी प्रकार से हमारी कोई भी रैगिंग भी नहीं हुई। एक्चुअली हमारे सीनियर टेक्निक थी, हमारी रैगिंग भी नहीं हुई थी, भाल भी नहीं हुई थी, हम कम्युनिकेट ही नहीं थे। फ्रेंकली बोल रहा हूँ, हम कम्युनिकेट ही नहीं थे। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा यहाँ से 13 पास आउट तो मेरा यहाँ सीराम में प्लेसमेंट हो गया था और मैंने सीराम ज्वाइन भी कर ली थी। एज ए फाइनेंस कंपनी में ज्वाइन किया था, उसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग, फिर मैंने 6 महीने बाद छोड़ दिया था। मैंने 3 मंथ की तैयारी की एंड अभी मैं सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, इट इज जॉइंट वेंचर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एमपी गवर्नमेंट। इसमें मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ। रीजनल ऑफिस मंदसौर में अकाउंट्स हेड के रूप में मैं वहाँ पे डेजिग्नेटेड हूँ और वहाँ पे मैं
51 ब्रांचों को संभालता हूँ। मेरे बैंक की 51 ब्रांचें दोस्तों रीजन में है, उसका मैं अकाउंट्स का हेड हूँ। किसी भी बंदे को गवर्नमेंट जॉब के लिए स्पेशली एसएससी एंड आईपीएस की कोई भी तैयारी कर रहा हो, कोई भी हेल्प चाहिए तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है, क्योंकि एट प्रेजेंट की भी फ्रेंकली मैं बोल देता हूँ, कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होते हैं लेकिन 50% स्टूडेंट छोड़ के तैयारी ही कर रहे हैं, और 50% जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ के बच्चे 13 बैच में स्टिल 4 साल हो चुके हैं, अभी वो लोग तैयारी में लगे हुए हैं। जो भी बंदा तैयारी करना चाहे मेरे से कम्युनिकेट कर सकता है। मेरा जो फेसबुक आईडी है वो अग्रवाल नवीन मित्तल के नाम से है, और मोबाइल नंबर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर ले सकते हो। थैंक यू। Recently, I am working on a PO Wipro company, and apart from this, due to my seniors guidance, my teachers guidance, उन लोगों ने पहले ही बोल दिया था जब मैं हम लोग की एक्चुअली हमारे की 100% होती थी, 99 point something हम डेली मार्क्स बम करते थे, तभी हम लोग क्लास में नहीं आते थे, बाकी हमारी 100% होती थी अटेंडेंस। तो ये लोग पहले से एमटेक करते थे क्लास में, सवाई सर वगैरह बाहर बैठे, तो इन लोगों ने इंस्पायर किया, तो मैं अभी एमटेक भी कर रही हूँ, एमटेक पंचमी फाइनल ईयर। एंड आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो रिगार्डिंग जॉब की और अपीओ के रिगार्डिंग, अगर कोई फ्यूचर में गाइडेंस चाहिए तो प्लीज कांटेक्ट मी एंड दैट्स समथिंग। और आगे भी बताते रहेंगे। इसलिए लाइफ के अंदर कुछ ये मत सोचा करो कि हाँ भाई क्या करना है, कैसे करना है, जो करो उसको अपना 100% दो। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं 2016 बैच पास आउट निकुंज सौरभ, और मैंने इस कॉलेज में सब चीज़ें की हैं जो मैंने सोची थी और जो नहीं सोची थी, और तो मेरे खूब सारे दोस्त आ रहे हैं, मतलब काफ़ी सब यहाँ बैठे हैं, और मैं 2016 में वैंकर्स का हेड कोऑर्डिनेटर भी था, और मैंने बीटीसी एलुमनाई के लिए प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए भी नॉमिनेट किया था खुद को, लेकिन वो किसी भी रीजन की वजह से नहीं हुआ, कोई बात। और एक्चुअली मैं रात में से बात कर रहा था, तो काफ़ी जैसे आज सीनियर्स आए ही नहीं है, मुश्किल से 40-50 लोग आए हैं, तो अब लोग हम सबको ऐसे कंसिडर करते हैं कि हम लोग बिल्कुल फ्री हैं, और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि, और सब कितने दूर दूर से आए हैं, मैं खुद दिल्ली से आया हूँ, बाकी लोग कई बोझ बोल रहे थे एमपी से आए हैं, और मेरे को यही बोलना है कि एक हम लोगों को पता ही नहीं है कि जैसे 2010 से पहले कौन से सीनियर पास आउट हो गए, हम उनको जानते भी नहीं है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि जिससे पता लगे। जैसे लिंक्डइन इतनी अच्छी चीज़ है प्रोफेशनल लोगों के लिए, आप लोग सब इतनी अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, हम लोगों को पता ही नहीं है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिससे कम्युनिकेट कर सके। और मतलब सीनियर्स आजकल सिर्फ ऐसे है ही नहीं जो गाइड कर सके अच्छे से, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो अब इन लोगों को 10-10 साल का एक्सपीरियंस हो गए, तो ये लोग हमें अच्छे से गाइड करें और मतलब कि अपने आपस में कॉन्टेक्ट में रह सकें। बस मेरे को यही बोलना था, रात में उसने मेरे को बोला था कि बात करेंगे, तो थैंक यू सो मच। आप मेरे को नहीं जानते, आप इसको नहीं जानते, राज क्योंकि रेगुलरली टच में है, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं जानते। तो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए कहूँगा कि जैसे कि हम लोग बिल्कुल चुनाव करें और एक लोकतांत्रिक तरीके से, जैसे कि हमारे बाकी इस प्रकार के लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, उसी मोड को इस्तेमाल करें, और जो भी कैंडिडेट अपने आप को एलिजिबल समझता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, किसी भी पोस्ट के लिए, वो मंच पे आए, अपनी बात रखे कि मैं प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहता हूँ, मैं बन के क्या करूंगा और मेरे को क्यों चुने। ये तीन चीज जब तक आप लोग पब्लिकली डिक्लेयर नहीं करोगे, मैं प्रशांत सक्सेना, मेरे को कोई नहीं जानता 2008 के बाद, हो सकता है 2-4 कंपनियों में प्लेसमेंट में, मेरा 7 कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ था, 2-4 में लिखा हो कोई जानता हूँ, ठीक है यार, कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। तो अगर आपको मेरे रिक्वेस्ट है, जो भी यहाँ सिलेक्ट होता है, कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग इलेक्शंस करें तो उसमें इस चीज का ध्यान रखें कि सबको मौका मिले। चाहे मैं आज 17 से पास आउट होता हूँ, आई एम एलिजिबल। जब लोकसभा राज्यसभा के भी चुनाव में 25 साल की उम्र होती है, तो फिर यहाँ तो मेरे साथ से गलत है करेगा। तो नेक्स्ट टाइम से आप जो भी करें, प्लीज एसोसिएशन का रिक्वेस्ट है कि सबको मौका दें, हर व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। ये चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होने चाहिए थे, और आधों को तो पता ही नहीं था कि बैलेट पेपर्स क्या है, क्या सिस्टम है। कॉन्फिडेंशियल तरीके से बैलेट पेपर होना चाहिए, एक बॉक्स होना चाहिए, बाकायदा स्टाम्पिंग होनी चाहिए। दूसरी बात, उसमें कहीं भी नाम नहीं था कि मेरा क्या है, मैं किसको वोट दे रहा हूँ।
तो एटलीस्ट उस चीज के काउंटर पॉइंट होनी चाहिए। एक प्रोटोकॉल है, सिस्टम है, क्योंकि इलेक्शंस एक ऐसी चीज होती है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी उस चीज में रहनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो मेरे साथ सहमत है पूर्ण रूप से वो एक बार हाथ ऊंचा करते हैं। मैं देख रहा हूँ 80% इस चीज से सहमत है। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम इस चीज से हो, इस बार की रिजल्ट जो भी हो अपन लोग वेलकम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे, मगर नेक्स्ट टाइम से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से इस चीज का चुनाव हो।